السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ بھارت کے علاقائی عزائم جنوبی ایشیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اہم وقت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاشی مشکلات کا شکار اور چین کے ہاتھوں فوجی ہزیمت اٹھانے والا بھارت پاکستان کے ساتھ جارحیت دکھانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان نے دنیا کو بھارت کے عزائم سے باخبر رکھتے ہوئے بہت اچھا کیا ہے۔ بھارت کی ہمسائیگی میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک توسیع پسند ملک ہے جو اپنے ہمسایوں کو روب اور دبدبے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ کابل سے رنگون تک سارے ہمسائے اسے اپنا بڑا مانیں اور ہر اہم قدم انڈیا سے پوچھ کر اٹھائیں۔ انڈیا کا اسٹریٹجک گرو چنکیہ ہے۔ اس متنازع اسٹریٹجسٹ کا نظریہ یہ تھا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ لامحالہ تعلقات خراب رکھے جائیں اور ان کو دبایا جائے، ان کے خلاف سازشیں رچی جائیں۔ اب وقت آ گیا ہے جب بڑے اور چھوٹے علاقائی کھلاڑیوں کو مل کر مودی سرکار کی مہم جوئی کا ہاتھ روکنا ہے، کیونکہ مودی سرکار داخلی حماقت سے توجہ ہٹانے کے لیے بیرونی محاذ کھولنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارت کا رویہ برسوں سے اس خطے میں نو آبادیاتی طرز کا رہا ہے اور 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد اس میں مزید شدت آ گئی ہے۔ مودی کے لیہ کے اس اچانک دورے کو انڈیا کے ذرائع ابلاغ میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی اہلکاروں اور بعض تجزیہ کاروں کی نظر میں اس دورے نے چین کو سخت پیغام دیا ہے، مگر دوسری جانب یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حالات بہت ہی نازک ہیں، آگے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ انڈیا میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ایل او سی پر جو کچھ ہو رہا ہے، نیپال جس طرح سے انڈیا کے ساتھ پیش آ رہا ہے، بنگلہ دیش اور بھوٹان جس طرح آنکھیں دکھا رہے ہیں، سب کے پیچھے چین کا ہی ہاتھ ہے۔ تو ظاہر ہے معاملہ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے انڈیا کو چین کے سامنے اور سنجیدگی سے پیش آنا ہوگا۔ بہت سے بھارتی دانشوروں کا خیال ہے کہ چین کو مودی پیغام بھیج رہے ہیں کہ انڈیا کی تیاری پوری ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں پورے معاملے کو اور بڑا اور سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے خیال میں مودی کو صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ چین نے جس طرح کا جارحانہ رویہ اپنایا اور پرتشدد جھڑپ میں جس طرح انڈین فوجی مارے گئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے ان تمام چیزوں پر پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ یقیناً چین اس پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے مارچ اپریل سے ہی یہ ساری تیاریاں شروع کر دی ہوں، اور جو کچھ بھارت لداخ میں کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، تو چین کے پاس انڈیا کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ سیٹلائٹس موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ اس وقت چین کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور چین کو بھارت کے ایک ایک موو بارے پل پل کی خبر مل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں چین نے تبت کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کی، جس میں اصل گولہ بارود استعمال کیا گیا، جس میں انڈیا کو پیغام دیا گیا کہ اگر صورتحال بگڑی تو انڈیا کے ارد گرد کے تمام محاذ کھول دیے جائیں گے، جن میں تبت کے علاقے نیپال اور بھوٹان بھی شامل ہیں۔ تبت 1950 سے ہی خود مختار ملک کے طور پر چین کے ساتھ منسلک ہے۔ تبت کے کچھ علاقے لداخ کے ساتھ خاص کلچرل مطابقت رکھتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تبت، بھوٹان اور نیپال اور ادھر پاکستان بھارت کے سب کے ساتھ خاصے کشیدہ تعلقات ہیں۔ یہ سب ایک حد تک کیمپ ہی سمجھا جاتا ہے جس پر چین کو انڈیا پر خاصا ایج حاصل ہے۔ امریکہ انڈیا کو چین کے خلاف اکساتا تو رہتا ہے، لیکن فوجی لحاظ سے انڈیا کے لیے چین کے سامنے ایک حد سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ انڈین اخبار دا ہندو نے رپورٹ کیا ہے کہ چینی فورسز کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کو ایک آسٹریلین سیٹلائٹ فرم نے امیجز میں دکھایا ہے کہ کس طرح چینی فورسز انڈین علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی نے دریائے داما کا پانی بھی چینی افواج کی جانب موڑ دیا ہے، جس سے وہاں پر موجود انڈین فوجیوں کو پسپا ہونا پڑا ہے۔ اس وقت انڈیا چین کے ساتھ ہر حربہ استعمال کر کے امن واپسی مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ معروف بھارتی دفاعی تجزیہ نگار اشوک سوائن کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ لداخ پر چین نے سخت وارننگ جاری کی ہے۔ بیجنگ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اشوک سوائن کہتے ہیں کہ مودی کے لیے وارننگ بھارت کے لیے وارننگ ہے، مگر مودی نہیں ٹال رہا اور بھارت بڑی خاموشی سے جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اب تک بھارت نے چین کی جانب سے سرحد پر فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے بعد اپنے ہزاروں فوجیوں پر مشتمل ڈویژن مشرقی لداخ کی سرحد پر تعینات کر دی ہے اور اطلاعات ہیں کہ جلد اس ڈویژن کی آرٹلری بھی پہنچ جائے گی۔ چین اور بھارت دونوں ملکوں کے کور کمانڈرز کے درمیان البتہ مذاکرات جاری اور ساری ہیں۔
3-4 दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई क्लियर कट नतीजा बरामद नहीं हुआ। बहुत से लोगों का मानना है ये मुज़ाकरात जंग से पहले वक्त खरीदने की एक कोशिश का नाम होते हैं। चीन लद्दाख में रवायती जंग के सारे हल्के और भारी हथियार जमा कर चुका है। दूसरी तरफ भारत भी धड़ाधड़ ऐसा ही कर रहा है। वैसे लद्दाख में जंग सिर्फ 5 माह तक हो सकती है। इसकी वजह मौसम है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ऐसे महीने हैं जिनमें यह मुमकिन है। इसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है, दर्जा हरारत इतना गिर जाता है और स्नो वॉरफेयर एक निहायत महंगी ऑप्शन है। इसलिए जो कुछ होना है वो सितंबर से पहले पहले हो जाएगा। भारत लद्दाख में चीन के साथ मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। पाकिस्तान को तन्हा करने के दावे करने वाला भारत अब खित्ते में तन्हा है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जिन्हें भारत अपनी कॉलोनी तस्वुर करता था, अब भारत को आंखें दिखा रहे हैं। चीन से लड़ाई के चक्कर में भारत दीगर मुल्कों की हमायत भी खो चुका है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चंद रोज कबल पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन के वजीर खारजा वांग जी के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की बात की गई। इस पर चीनी वजीर खारजा वांग जी ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाक चीन इक्तसादी राहदारी फेज 2 को भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। यानी भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि सी पैक तकमील के आखिरी मराहिल में है तो भारत ने जो करना है कर ले, सी पैक तो मुकम्मल होकर रहेगा। यहाँ एक चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफी सुलेमान गनी साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि चीन ने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि भारत लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं। तो चीन ने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दे और खुलकर सामने आ जाए। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ। इजलास का इनकाद, एजेंडा और इस पर गौर व खोज की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि भारत अंदरूनी तौर पर अपने लिए बढ़ते हुए मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए रवायती तौर पर हमसाया ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की पॉलिसी पर गामजन है, जिसकी एक बड़ी मिसाल कराची में स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करना है। इजलास के एलामिये में नहायत जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए कहा गया कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। इस अमर पर दो आरा नहीं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी के तौर पर इसे अपने अवलीन मकसद के तौर पर निभाया। इस वक्त इलाकाई सूरत हाल और भारत की खतरनाक अज़ाइम के खिलाफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान एतमाद का ताल्लुक इसके लिए बड़ी रुकावट और चैलेंज है। आने वाले दिन बहुत अहम हैं। किसी भी जानिब से एक छोटी सी गलती इस खित्ते को एक लंबे अरसे तक कायम रहने वाली जंग में धकेल सकती है। लद्दाख के जिस इलाके में चीनी अफवाज दाखिल हो चुकी हैं वो दरअसल चीन का ही इलाका है। लद्दाख का इलाका हिमालय की तराई में वाक़या है, जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ सर्दों का तयन करना बहुत मुश्किल है, मगर 1962 की जंग के बाद चीन ने अपने इलाके में कुछ खंबे या निशान लगा दिए थे। वक्त के साथ साथ वो बाकी नहीं रहे। पहले चीनी फौज पूरी गलवान वादी और मुल्हका इलाकों में गश्त करती रहती थी। बाद में भारत के साथ अमन और सलामती के कई माहिदों के बाद चीनी फौजियों ने ऐसे इलाकों में गश्त करना बंद कर दिया था, जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया और इसके फौजी चीनी इलाके में गश्त करने लगे और फिर इसे अपना होने का दावा करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां फौजी तामीरात शुरू कर दी गई और देखते ही देखते सड़कों का जाल बिछा दिया गया। चीन ने एतमाद शिकनी और दरअंदाजी पर भारत को कई बार मुतनब्बे किया कि वो इसके इलाके में नाजायज तामीरात और सड़कें बनाने से बाज रहे, मगर भारत अपनी हट दर्मी से बाज ना आया। कांग्रेस के दौर में ये नाजायज तामीरात कम थी, मगर मोदी के हुकूमत संभालने के बाद जंगी बुनियादों पर इस चीनी इलाके में सड़कों की तामीर और हवाई अड्डे बनाना शुरू कर दिए। चीन ने अपने ही इलाके में भारत की जानिब से नाजायज तौर पर फौजी एतबार से अहम सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों की तामीर और मोदी की सी पैक मंसूबे को तबाह करने की धमकियों का नोटिस देते हुए गलवान वादी से यशोक नदी तक के पूरे इलाके को भारतीय फौजियों से चंद घंटे की मुठभेड़ के बाद ही खाली करा लिया था। भारत इसे बड़ी ढटाई से चीन की दरअंदाजी से ताबीर कर रहा है। चीन के अभी कुछ मजीद इलाके भारतीय कब्जे में हैं, जिन्हें खाली करवाने के लिए इसने भारत को वार्निंग दे रखी है। इसने ये भी कहा कि अगर इसके बाकी इलाके खाली नहीं किए गए तो 1962 की कार्रवाई
दोहराई जा सकती है, जिससे भारत को फिर अपने ही कुछ इलाकों से हाथ धोना पड़ेगा। भारत का अलमिया यह है कि इसकी हर हुकूमत शुरू से ही अखंड भारत के नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए कोशा है। वो अफगानिस्तान से बर्मा तक पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। अब मसला यह है कि मोदी असली बात अपने अवाम को कैसे बताए कि भारतीय फौज ने जिन चीनी इलाकों से पसपाई इख्तियार की है वो भारत के नहीं, दरअसल चीन के ही थे। अब डर ये पैदा हो गया है कि मुश्तिल चीन अमरीकी फौजियों के भारत पहुंचने से पहले ही भारत के अहम शुमाल मगरबी और मशरकी इलाकों पर कब्जा न कर ले। असम और बंगाल को मिलाने वाली चिकन नेक चीन के निशाने पर है। अगर चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तो भारत मशरिक में वाक़ अपनी 7 रियासतों से महरूम हो सकता है। बाज़ भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी ने भारत की रवायती गैप जराना पॉलिसी छोड़कर और अमेरिका की गोद में बैठकर भारत के पुराने दोस्त रूस को भी नाराज कर लिया है। रूस पहले हमेशा हर मुश्किल वक्त में भारत की मदद करता था, मगर अब वो मोदी की मगरिब नवाज पॉलिसी से सख्त नाला है और इसलिए इसने राजनाथ को अपने हाथ से खाली हाथ वापस भेज दिया है। तज्जियाकारों का मजीद कहना है कि अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है। वो किसी भी मुल्क से अपने मफाद में दोस्ती करता है, वो अपने मफाद के लिए भारत को चीन से लड़ाना चाहता है। अगर मोदी अमेरिकी साजिशी जाल से बाहर ना निकला तो भारत का चीन के हाथों तबाह होना यकीनी है और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखता रहेगा। हकीकत यह है कि चीन इक्तसादी और अस्करी लिहाज से इंडिया से कहीं ज्यादा पावरफुल है। चीन की फीकस आमदनी इंडिया से 4 गुना ज्यादा है। चीन का दफाई बजट 228 अरब डॉलर है, जबकि इंडिया का दिफाई बजट 60 अरब डॉलर है। चीन सुपर पावर बनने के करीब है, जबकि इंडिया इस हदफ से अभी खासा पीछे है और बहुत दूर है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।